9. So 29 says, question 29 says, and we'll come to this topic again. So what we have is 3m n raised to the power 1 by 2 into 4m raised to the power 4 by 3 into n raised to the power 1 by 2. Isn't it? So what you're seeing is 3 times n raised to the power 1 by 2. The n की power 1 by 2 है, ना कि पूरे की power. And here you have in dot means product 4 into m की power 4 by 3 into n की power 1 by 2. So what you have when you have multiple, you could say now we are using algebra and including exponents with it. तो हमारा तरीका यही है कि you first include the terms which have the same base. एक तरीके से m and m are like exponents with the same base. So 3 into m over here into m raised to the power 4 by 3. ये ऐसे कर सकते हैं आप. ये जो 4 है उसको आप पहले लिख सकते हैं. So that numbers take the preference सबसे पहले. फिर उसके बाद फर्स्ट वेरिएबल को सारे टर्म्स एक साथ लिख, सारे यू कैन से एक्सप्रेशन में जितने भी एक्सपोनेंट्स उनको एक साथ लिख लीजिए और फिर दूसरा वेरिएबल. तो वी हैव अकाउंटेड फॉर 3 ऑलरेडी, वी अकाउंटेड फॉर 4 रिटन, m वी हैव रिटन m की पावर 4 by 3 रिटन. अब बचा क्या? n की पावर 1 by 2 and n की पावर 1 by 2 2 times. अब काम आसान है. दिस इज 4 times 3 is 12. m और m इन दोनों को अगर आप कंबाइन करना है तो व्हाट यू कैन यूज इज यू कैन अप्लाई a raised to the power m times a raised to the power n gives you a raised to the power m plus n rule. ये रूल लगा सकते हैं. So that gives you m as m की पावर 1 plus 4 by 3. The same rule can be applied to this and written as 1 by 2 plus 1 by 2. So what you get is 12 raised to the power 12 into m raised to the power 1 plus 4 by 3 times n raised to the power 1 by 2 plus 1 by 2. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो LCM is 3. This will become 7 by 3. 12 m raised to the power 7 over 3 and n raised to the power half and a half is a simple n power 1. And that would be your simplified form of this answer. So algebra को इन्वॉल्व करके भी हम कर सकते हैं. और कोई क्वेश्चन? Now let's come to what I was trying to tell you. Last class में हमने indices में fractional powers तो देख लिए और हमने ये भी देखा कि फ्रैक्शनल पावर हो, नेगेटिव फ्रैक्शन हो, पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, पावर में आपके रूल ऑफ एक्सपोनेंट सेम है. कौन से? वो 4-5 रूल एक बार यहाँ पे फिर से लिख देते हैं so that we have easy reference. a raised to the power n into a raised to the power n gives you a raised to the power m plus n. यानी when you have two different exponents with different powers but the same base, the powers just get added. 2, when you have an exponent with a power divided by the same base with a different power, you get the difference of the power. और ये जनरल रूल भी था कि a की पावर m times a की पावर n times a की पावर m and o into a की पावर p भी होता है. So the result would have been m plus n plus o plus p and so on. ऐसे चलता जाएगा and so on and so on. In the division, this does not apply. And the third is when you have different bases, a raised to the power n, but the same power, b raised to the power n. In that case, your bases are multiplied and raised to the same common power.
इसके अंदर भी जनरल रूल हो सकता है where a raised to the power m times b raised to the power m times c raised to the power m times and so on would give you a into b into c into whatever dot 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 raised to the power m. ये इसका जनरल वर्जन हो गया. D for fourth identity, a raised to the power m over b raised to the power m gives you a by b whole raised to the power m. यानी डिफरेंट बेसिस हैं बट उनकी पावर्स आर सेम. It's as good as dividing the two bases and raising it to the same power whatever you have. तो इससे यही मतलब है. इसके अलावा पावर ऑफ ए पावर यानी if a is raised to the power m and that again is raised to the power n, that actually is a raised to the power the product of the power. A raised to the power m again raised to the power n is equal to a raised to the power m times n. Power gets multiplied. इसका जनरल वर्जन हो सकता है a raised to the power m whole raised to the power n again raised to the power o whole raised to the power again p and so on would mean a raised to the power m times n times o times p times whatever. ये इसके जनरल वर्जन है. ये हमारे रूल्स हैं. इन्हीं पे कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं वो हमने अभी बात कर ली थी बट फंडामेंटली यही आपके रूल है. अब हम बात कर रहे थे कि हाउ डू वी कंसिडर द फ्रैक्शनल पावर्स एंड रिलेटेड टू रियल नंबर्स. क्योंकि रियल नंबर्स हम बात कर रहे थे. रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर्स हैं. इरेशनल नंबर जैसे रूट ऑफ 2 या रूट ऑफ 3. तो ये जो रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ 3 है इनको हम एक्सपोनेंट से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं. बाय द वे इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्क्वायर रूट ऑफ 2. इट कुड हैव बीन cubic root of 2 also or a cubic root of 3 also or for that matter fourth root of 3 fourth root of 5 and so on. ये सारे रियल नंबर्स हैं इरेशनल नंबर्स हैं. इनके भी एक्सपोनेंट फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं. कैसे? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक्सपोनेंट वर्क कैसे करता है. तो जैसे 2 है 2 की पावर 0 इज अ सिंपल 1. ऐसे 2 की पावर 1 इज बेसिकली 2. 2 की पावर 2 इज बेसिकली 2 स्क्वायर और 4 एंड सो ऑन. तो क्या हो रहा है when you are going to the exponent like increasing them 0 1 and 2, you're basically doing multiplication of the previous one with a 2 and so on. This is what you're doing. तो अगर आपको वापस इस फॉर्म से उल्टा डायरेक्शन में जाना है तो you can do it by dividing by 2. That means 4, if you want to go from 4 to 2, you can divide by 2. Divide by 2. If you want to go from 2 to 1, that would be divide by 2 again. ठीक है. That gives us कि 2 की पावर -1 is basically nothing but ये जो 1 है इस 1 को भी जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो दैट इज व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, राइट. तो ये हमारे नेगेटिव एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट था. अब जब हम फ्रैक्शनल पावर्स में हम बात करें तो फ्रैक्शनल पावर्स में क्या है कि अल्टीमेटली फॉर अ रियल नंबर जैसे 4 है हम बोलते हैं कि 4 है उस 4 का स्क्वायर रूट इज बेसिकली 2. क्यों? इसका मतलब क्या है 4 का स्क्वायर रूट इज 2 मीनिंग कि अगर ये जो रूट है इस रूट को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 आना चाहिए, राइट. तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग इज ये जो नंबर 2 है इस 4 से कैसे कनेक्टेड है. ये इस 4 से कनेक्टेड है बाय डूइंग द स्क्वायर रूट.
और वो कनेक्ट एक इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि इस 4 का 1/2 पावर अगर आप देखो तो 4 की हाफ पावर बेसिकली इज एक्चुअली गोइंग टू गिव अस इस 4 के अगर आप प्राइम फैक्टर जानते हैं तो यू नो दैट यू कैन राइट इट एज 2 स्क्वायर ऑल्सो and then whole raised to the power 1 by 2, which would give you 2 raised to the power 2 into 1 by 2. That would give you 2 raised to the power 1, which is also going to be 2. यानी 4 raised to the power half and 4 का square root are both the same, क्योंकि इससे भी आपको 2 मिलता है और इस एक्सपोनेंट फॉर्म से भी जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो भी आपको 2 मिलता है। तो ये एक बड़ा यूनिक सी चीज है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट को आप एज ए एक्सपोनेंट की तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी जितने भी नंबर है जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 उसका भी मतलब यही है कि 5 की पावर 1 by 2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ अगर कोई बोल रहा है 20 दैट मीन्स 20 रेज टू द पावर 1 by 2। तो जितने भी रूट्स हैं स्क्वायर रूट्स हैं आप उनको पावर 1/2 लिख सकते हैं। यानी हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर मतलब स्क्वायर इज 2 पावर 2, तो रूट निकालने में 1 by 2 पावर लिख दिया जाता है। ऐसे अगर कहीं पे लिखा है क्यूबिक रूट ऑफ 5 लेट्स से, so that actually stands for 5 raised to the power 1 by 3. Square root, cubic root of 2 means 2 raised to the power 1/3. तो ये आपका रेडिकल फॉर्म है, ये आप एक तरीके से रेडिकल फॉर्म बोल सकते हैं, ये इसका करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट फॉर्म। बात समझ में आ रही है? तो अगर कहीं पर फोर्थ रूट लिखा है, फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट ऑफ 2 इज बेसिकली 2 की पावर 1 by 4। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि बहुत सारे नंबर्स ऐसे होंगे जिनके जैसे सपोज 16 है, वी नो दैट 16 इज 2 times 2 times 2 times 2 which is actually 2 raised to the power 4। ठीक है, तो अगर आपको नंबर दिया है 16 दिस इज 2 raised to the power 4, तो अगर आपको इसका कोई बोले कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन सिंपली राइट इट एज 16 पावर 1 by 2, और 16 को आप जानते हैं इट इज 2 की पावर 4 रेज टू द पावर 1 by 2 नाउ, which is 2 की पावर 4 into 1 by 2, which is 2 की पावर 2 और a simple 4। तो डायरेक्ट उसके एप्लीकेशन यहाँ देख सकते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है तो इट इज 4। अगर कोई पूछे 16 का फोर्थ रूट यानी फोर्थ रूट ऑफ 16 निकालना है तो अगेन व्हाट यू वुड डू इज 16 की पावर 1 by 4 हो जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट फॉर्म which is 2 raised to the power 4 whole raised to the power 1 by 4, which is 2 की पावर 4 times 1 by 4, which means 2 की पावर 1 और simple 2। यानी square root of 16 is a 4, but उसका fourth root is रूट का भी रूट निकालना। अगर स्क्वायर रूट है तो इसमें यानी इसका एक सिंपल रूट आपको निकालने को बोल रहा है। अगर फोर्थ रूट कह रहे हैं उस रूट जो आया उसका भी स्क्वायर रूट इज द फोर्थ रूट ऑफ एनी नंबर। So that's how we we can connect irrational numbers, ये सारे जो irrational numbers हैं which are written in the form of roots, third root, fourth root, ऐसे fifth root भी हो सकता है, fifth root which can be written as 5 raised to the power 1 by 5। तो पहली चीज तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कोई इरैशनल नंबर को एक एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं और वो उसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा, दैट्स वन। द सेकंड थिंग वुड बी इफ वी कैन अप्लाई द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू दैट। ठीक बात है? तो
अब मैं जहां पे भी आपको इंडेक्सेस दिए थे, जहां पे आपको सिंपल पावर्स दिए थे, मैं वहां पे उनकी जगह पे रियल नंबर्स रिप्लेस कर सकता हूँ एंड आई कैन होप दैट यू कैन आंसर सम क्वेश्चंस लाइक दैट. You can see that around here. Let's see. जैसे अब मिक्स करने के पॉइंट से हम कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स से 12 टाइम्स क्यूबिक रूट ऑफ 27. सिंपल, इसका सिंप्लीफिकेशन अगर वो पूछता है तो व्हाट वी कैन डू इज we can write 12 as 12 raised to the power 1 by 2 and 27 as 27 raised to the power 1 by 3, just by the definition of you know how to express a real number or a irrational number into an exponent form. अब आप इन नंबर्स जो अंदर है उनको आप जानते हैं कि दे आर कॉम्पोजिट नंबर्स, इनके प्राइम फैक्टर्स आप जानते हैं. 2 into 2 into 3 is for 12, so raised to the power 1 by 2 into 3 into 3 into 3 is for 27 raised to the power 1 by 3. Now you can write it as 2 squared into 3 raised to the power 1 by 2 into 3 cube raised to the power 1 by 3. So ultimately क्या है, आप फर्स्ट इससे देखें तो it would be 2. अब आप क्या कर सकते हो, what you have is two numbers which are being expressed as a power of something, जिनकी power 1 by 2 है. So now you have a into b whole raised to the power n, which can be split into a की power n into b की power n. So with that, I can write it as 2 square की power 1 by 2 into 3 की power 1 by 2 into 3 की power 3 into 1 by 3. इस a की power m raised to the power n can be written as a की power m times n. ये भी यूज कर लिया, दोनों रूल्स आपने यूज कर लिए. इस स्टेप में इस स्टेप में आने के लिए ये यूज किया, इस स्टेप को इन दोनों को इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाला रूल यूज कर लिया. ठीक है, तो दिस गिव्स यू सिंपली 3 और इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको 2 मिला. तो 2 इधर से आया और 3 इधर से आया और ये आपका 3 की पावर 1 by 2 है. So ultimately when you are going to simplify, now again you can combine the powers of this 3 and over here because they have the same base. Same base है, पावर अलग अलग है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है और 2 के साथ कोई और कंबाइन नहीं कर सकते, तो सिंपली 2 लिखेंगे और 3 की पावर 1 plus half, which will give you 2 into 3 की पावर 3 over 2. तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, यानी दिस इज योर फाइनल सिंप्लीफिकेशन. या आपको अगर इसको एज ए वापस से रियल फॉर्म में लिखना है तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो. 2 टाइम्स ये जो 1 by 2 है उसकी जगह पे आप स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, बिकॉज बेसिकली क्या है, 3 by 2 is again something which can be written as 2 into 3 cube raised to the power 1 by 2. तो ये जो 1 by 2 है, 3 by 2 जो है कैन बी रिटन एज 3 times 1 by 2 और 3 जो है इस 3 के साथ आप पावर ऐसे रेज कर सकते हैं एंड द होल थिंग कैन बी रेज टू पावर 1 by 2. That being said, ये 1 by 2 is nothing but a square root, so I will replace 2 into square root of 3 cube or 2 into square root of 27. सिंपल एक स्टेप आप ये भी लिख सकते हो लास्ट. इसका सिंप्लीफिकेशन करने में ये फॉर्म भी लिख सकते हैं या यहाँ पे जो लिखा था एक्सपोनेंट, सिर्फ एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो ये आंसर लिख सकते हैं. अगर एज ए रियल नंबर एक्सप्रेस करना है तो ये भी आंसर एज ए रियल नंबर आप लिख सकते हैं. बात समझ आई? हाँ,
ये हाँ 1 ही तो लिखा। ओ या नहीं, ये वाला पार्ट पहले लिख दिया और ये वाला बाद में लिख दिया है, ऐसा होने देता। तो ये इसका एक एप्लीकेशन है आपका। अगर आप इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं कुछ रियल नंबर से, तो यू वुड हैव मोर थिंग्स टू डू, बट प्रिंसिपल वुड स्टिल रिमेन द सेम। आप यही आइडेंटिटी, यही लॉज यूज करेंगे। अप्रोच बस सिंपल यही है कि एक एक्सपोनेंट को आप एक इंडेक्स फॉर्म, एक रियल नंबर को एक इंडेक्स फॉर्म में लेके आए या उसके एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आए, और उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। बात समझ आए? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज some other example you can do here. Let's go back to it. This is fourth root of 16 into root of 64 divided by cubic root of maybe 8 into fifth root of 32. Simple. ये आपका क्वेश्चन है। So we know that fourth root का क्या मतलब होता है? Fourth root means 16 raised to the power 1 by 4. And ये square root है, that is 64 raised to the power 1 by 2. और ये है 8 की पावर 1 by 3 और 32 की पावर 1 by 5। ये इसका एक्सपोनेंट फॉर्म है। अब एक्सपोनेंट फॉर्म में भी अब आगे की रास्ता इसलिए क्लियर नहीं लगेगा बिकॉज नाइदर द बेसिस आर सेम, ना ही इनकी पावर सेम है, तो डायरेक्ट लॉ को नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसमें आप स्टेप ये ले सकते हो कि ये जितने भी नंबर्स हैं दे आर ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स, एंड कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग हमारे काम आएगी कि 16 इज नथिंग बट 2 raised to the power 4 because 16 is 2 times 2 times 2 times 2, that is 2 raised to the power 4। 64 जो सेकंड नंबर है दैट इज 16 into 4, तो 16 के बाद 16 into 2 स्क्वायर, यानी जो इसकी पावर थी 2 raised to the power 4, उसके बाद 2 स्क्वायर कर दीजिए तो यू गेट 2 की पावर 4 plus 2 और 2 की पावर 6। तो 16 will equivalently be written as 2 की पावर 6। 8 we already know is 2 into 2 into 2 or 2 cube, and 32 is nothing but 2 16 का double, so I can write it as 16 into 2, and 16 is nothing but 2 की power 4 from here, so 2 की power 4 into 2 gives you 2 की power 4 plus 1 or 2 की power 5। So my next step is to replace all of these exponents with their corresponding, values, simplified values, to, and where everything has been reduced, इसकी base 2 हो गई, so it can be written as 2 raised to the power 4 whole raised to the power 1 by 4। 64 can be written as 2 raised to the power 6 whole raised to the power 1 by 2 upon 8 raised to 8 की जगह पर 2 raised to the power 3 whole raised to the power 1 by 2 into 2 raised to the power 5 whole raised to the power 1 by 5। Now it looks like it is a power of a power form as a given, so I can simplify it as 2 raised to the power 4 into 1 by 4 into 2 raised to the power 6 into 1 by 2 whole upon 2 raised to the power 3 into 1 by 2, sorry 1 by 3, it's not 1 by 2, it's 1 by 3 into 2 raised to the power 5 into 1 by 5। तो ये 4 और ये 4 कट गया यहाँ पे, तो पावर बची 1। तो पहले जो टर्म है ऊपर उसमें 2 की पावर 1 हो गई,
दूसरा जो है इसमें ये 2 को 6 को 2 से डिवाइड कीजिए गेट 3, तो ये होगी 2 की पावर 3 होल नंबर पावर्स आ गई। अब इस 3 को 1/3 से डिवाइड किया तो यहाँ भी बनाया, और इधर इसको भी हम 2 लिख सकते हैं, और ये 5 को 1/2 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये गेट है 1 अगेन, एंड यहाँ भी आप 2 लिख सकते हैं। So what you have is numerator में 2 की power 1 plus 3 again by the same rule, जो a की power m into a की power n adds up, here it would be 1, और simply you can write it as 2 की power 4 नीचे 3 है minus 3, और simply ये इसका simplification आ गया। तो यहाँ से शुरू हुए यहाँ से, and it also proves something कि individual irrational number दिए लग रहा है ये irrational, but they were not irrational by the way, ये irrational नहीं है, इसकी वैल्यू यहाँ पे फाउंड आती है 2, ये भी irrational नहीं है, इसकी वैल्यू 2 की पावर 3, ये भी irrational नहीं है, इसकी वैल्यू 2 है, ये भी irrational नहीं है 2, but अभी use a form in which it can create an impression जैसे हम irrational number से डील कर रहे हैं. But still, the laws of exponents are universal. You can apply them and simplify to get their final result. Yes. I'll share questions on this approach as we always do, so that you can get more time to practice. कोई confusion, कोई question आप पूछ सकते हैं? Great. So, I might be coming to getting for one. So if you put from this for one, so can I can take off time? Yeah, you can. Okay, sir. Great. ठीक है, चलो मैं देखता हूँ. We'll see you soon. Okay, sir. All right. Bye. Okay, sir. Thank you.